बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today's date is 12th September 2020 and the day is Saturday. Now students, open your books. Today we are going to study unit number 7, Sultan Ahmad Mosque. First we see the learning outcomes of this unit. The learning outcomes are: students, you will learn about the historical mosque, that is Sultan Ahmad Mosque and called Blue Mosque. You will appreciate the Muslim architecture, use dictionary skills, thesaurus skills to find out the meanings, and you will identify the parts of speech. Okay students, let's start the unit number 7, Sultan Ahmad Mosque. First we see the pre-readings. Name some of the historical places in the Pakistan. Students, historical places are lots of here. Hiran Minar, Minar-e-Pakistan, Noor Mahal, Shalimar Garden, Rohtas Fort are the historical places, and you can search further places. Tell the names of some important masjids in the Pakistan. Important masjid: Badshai Masjid, Wazir Khan, Shah Jahan, Faisal Mosque. These are the important masjids in the Pakistan. What do you know about Turkey? Students, it's your task. You have to search about the Turkey. You have to search it. Now let's start the reading of this unit. Sultan Ahmad Mosque या Sultan Ahmad Masjid. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो मोनूमेंट्स अजूबा है दुनिया में. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. डेकोरेट किया हुआ its interior अंदरूनी. Situated in Istanbul, the largest city in the Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. यानी कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये वाक़या है और ये जो है यहाँ का कैपिटल भी है और ऑटोमन एम्पायर के दौर का ये कैपिटल था. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ के सयाहों के लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसके लिए कशिश खींचता है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1660 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, यानी कि अहमद वन के हुक्मरानी के दौरान ये मस्जिद बनाई गई थी. एज़ was the custom, this masjid like other masjid of the time, उस वक्त दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी थी. comprises a tomb of the founder and मदरसा and the hospice, यानी कि इसके ऊपर टॉम मीनार था, मदरसा एंड hospice यानी कि मदरसा भी था और hospice यानी कि मुसाफिर खाना, लोग यहाँ पर आकर स्टे भी करते थे. Construction of the masjid started in 1609. The royal architect Sadifur Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज थे वो सैदिफर महमद आगा थे. The opening ceremony was held in 1660. Unfortunately, Sultan could not see the completion of the masjid. यानी कि सुल्तान जिसने ये मस्जिद स्टार्ट की थी वो इसको देख ना सके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी. It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा वन, यानी कि इससे जो अगले वाले हुक्मरान थे मुस्तफ़ा, उन्होंने इसकी कंप्लीशन की. Blue Mosque reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church, Hagia Sophia. एक बहुत बेज़नीत चर्च, यानी कि एक चर्च की तरह और मस्जिद के तर्ज पर बनाया हुआ ये एक मस्जिद थी, बहुत खूबसूरत. हागिया सोफिया मस्जिद, वन ऑफ द वंडर ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर. स्टूडेंट्स, हागिया सोफिया भी एक मुस्लिम जो फ़न तामीर है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी. एंड रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हागिया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया. पहले ये चर्च बना दिया गया था, फिर म्यूज़ियम बना दिया गया था और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद इसको अभी तैयब उर्दुगान ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर नमाज अदा की गई. वॉज आल्सो केप्ट इन द व्यूज़ एज अ मॉडल, और मॉडल के तौर पर उसको रखा गया सामने. ब्लू मॉस्क इवन टुडे इज़ द कंसिडर्ड टू बी द अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज़, यानी कि खूबसूरती के लिहाज से आजकल अपनी मिसाल आप है. द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by the continuous valuated arcade. मीन्स मस्जिद में बहुत खूबसूरत सहन है
और वो बहुत अच्छे से सजाया गया। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, यानी वज़ू करने की सहूलत मौजूद है ऑन द बोथ साइड। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन फवारा है विच इज़ रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी कि सहन के मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो लेंथ और उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग वो एक स्मॉल सा फाउंटेन लगाया गया है। ए हैवी आयरन चेन हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, यानी कि दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर एक हैवी चेन हैंग की गई है ऑन द वेस्टर्न साइड पे। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court, यानी कि जब भी वो यहाँ से गुजरे तो अपना हेड जो है वो नीचे करके इनके सर झुका के गुजरे। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine, यानी कि आजिज़ी पैदा करने के लिए इस अमल को किया गया कि जब भी वो गुजरे तो उनको एहसास हो कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम जो हैं वो बहुत इतने वैल्यूएबल नहीं हैं। The interior of the masjid at the lower level is lined with the more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs, यानी कि 50 डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस थे और 20,000 जो है हैंडमेड टाइल्स यहाँ पर लगाई गई थी। एट द गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स द फ्लैम्बॉयंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट एंड सेपरेसेस। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट, यानी कि ब्लू पेंट से इसका अपर लेवल डेकोरेट किया। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज विद द intricate design allow the natural light of the brighten up its interior and chandeliers further illuminated with their glow, यानी कि लाइटिंग यहाँ पर की गई और शाइनिंग शिमरीज के साथ चीज़ों को यहाँ पे डेकोरेट किया गया ताकि ये अपनी ग्लो बरकरार रख सके। द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान की आयात वहाँ पर लिखी गई, क्रेव की गई। द फ्लोर आर कवर्ड विद कारपेट्स, और फ्लोर को कारपेट से कवर किया गया, कालीनों से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ महराब, यहाँ का महराब बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, यानी कि ख़ास किस्म के मार्बल से बनाया गया। टू द राइट ऑफ द महराब इज़ द रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन इट इज़ द मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम, यानी कि जो इमाम की जो महराब थी जहाँ पर इमाम मस्जिद जो थे खुतबा देते थे या वहाँ पे नमाज की इमामत करवाते थे, तो वो इतनी क्लियर थी कि वहाँ पर हर बंदा उनको सुन सकता था, उनको देख सकता था। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, यहाँ पर मस्जिद के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रॉयल रूम था, बादशाह का रूम था। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोसेस, यानी कि फूलों से, और जेड कहते हैं हाथी की चीज़ों जो दांत थे उससे बनाए गए थे। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनार्स, यहाँ के जो मीनार थे वो 6 थे। 4 मीनार स्टैंड, 1 each at the 4 corner of the मस्जिद, यानी चारों कॉर्नर्स पे थे। एंड ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मीनार्स has their balconies while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies, यानी कि जो 4 थे उनकी अपनी बालकनी थी और जो फ्रंट पे 2 थे उनकी अपनी बालकनी थी। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट trucks gather in the park facing the masjid to hear the call to the evening नमाज, यहाँ पे सियाह आते हैं और शाम की आज़ान सुनते हैं। The masjid is flooded with the lights and so are the hearts of the believer with divine love, यानी कि लाइट्स से ये मस्जिद बहुत ज़्यादा जगमगा रही होती है और जो लोगों के दिलों पर असर करती है। Though much has been lost of blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visiting, इसको इतना टाइम हो चुका है लेकिन इसने अपने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखा हुआ है। दिस मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली ये मस्जिद है, यानी कि दुनिया में इसका और टूरिंग पॉइंट ऐसा ये मस्जिद को भी एक अहमियत हासिल है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी सी द थीम ऑफ दिस चैप्टर। The theme of the unit is highlighted the significance of the Islamic architecture. The world of Islam has splendid heritage of art and architecture in which they excelled throughout the history. Masjid have always been the prominent feature of Islamic architecture. The essay not only highlight the glory of Sultan Masjid but also throw light on the skills and ability of the architect of that time. उस टाइम की ये जो फ़न तामीर थी उनको ये वाज़िया करता है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लॉसरी आपको गिवन है, वर्ड्स मीनिंग आपने इसके प्रिपेयर करने हैं, इसकी रीडिंग को आपने थॉरली रीड करना है, उसमें से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द डायरी। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अमीन मॉस्क, रीड द होल चैप्टर एंड फाइंड आउट सम मीनिंग एंड आल्सो लर्न द डायलॉग नंबर 3। नाउ लेट्स प्रे दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।